Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding Sunita Williams and her coming back to homecoming into the earth. So traced with gravity. Butch Wilmore and Sunita Williams both were stranded in the International Space Station for more than roughly around 9 months. Okay, the permissible number of days was 6 months, but due to some failures and malfunctions, they had to be stranded in the International Space Station for 9 months, more or less 9 months. So it's a very important theme, and we have to discuss about the topic in detail because it is a very likely topic that could come into the examination. So this is the first news, and this is something that we should be happy about, that they came back safely and they were not hurt. But you know, this is one topic that we need to discuss more. And second is Union Cabinet clears Namrup 4 fertilizer urea प्लांट जो है यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया है, द नामरूप 4 प्लांट. ओके, सो दिस इज द सेकेंड न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट ऑफ असम, very interesting, very important, and you have to understand about this topic. And last is Philippine kings on India joining the Squad, General Bronner. Squad is a minilateral. Okay, there are different types of engagement that we do in various region, for example in Indo-Pacific or the South China Sea region, right? So to curtail China in the South China Sea region, the Quad had formed a squad. Okay, so we have to understand about this Quad also, and Quad के बारे में तो we have discussed it many a times, but we will, this is one topic जो कि पूछा जा सकता है examination में, ठीक है? And mapping point of view से it's really important to do the mapping of the respective regions. All right, so these are the 3 important topics. Let us begin one after another. First, you can see this picture. This picture shows a lot of emotions, especially for Butch Wilmore and Sunita Williams, that they came back to their homeland, this earth. They came back and they were very happy that they were stranded for more than 9 months in there. So now they came back and they are welcomed. Okay, they are welcomed in this earth, and again it is one picture that we should celebrate it now. ठीक है, वहाँ पर इन दी 400 किलोमीटर अबव द अर्थ रहना कोई बहुत आसान बात नहीं है, बहुत, इट्स वेरी टफ. द ग्रेविटी इज, देर इज नो ग्रेविटी. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द रेडिएशन बिकॉज द अर्थ सेंड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेडिएशन इंक्लूडिंग गामा रेज, यूवी रेज that are cut by the space and the ozone layer. So they were getting the radiations, and there was no gravity. That's why the health gets deteriorated, impaired visions, and हड्डियों में भी बहुत जो है प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाता है. ठीक है, so now they are back in the earth and they will go, obviously they will go intense, उनका जो केयर जो है वो किया जाएगा, and they will hopefully they will get better and they will be healthy again. In the early hours of March 19, a SpaceX crew capsule bearing NASA astronaut Sunita Williams, Barry Wilmore, Nick Hague, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbunov splashed down into Florida coast. Miss Williams and Mr. Wilmore had returned to the Earth after 9 months in the International Space Station, whereas they had originally been expected to spend 8 days in the course of testing Boeing Starliner's crew capsule. See, सुनीता विलियम्स एंड बैरी बच जो है हमारे बच या फिर बैरी विलमोर जो है, मिस्टर विलमोर, सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर, both of them were stranded, and उनके साथ जो है 2 लोग और जो है वो नीचे आ गए. ठीक है, कौन कौन? निक हेग एंड रॉसकॉस्मोस इज रशिया स्पेस एजेंसी. रॉसकॉस्मोस के जो कॉस्मोनॉट है अलेक्जेंडर गुर्बुनोव. ठीक है, 4 of them they came back to the earth and they were splashed into the Florida coast. Okay, so Miss Williams जो है they went there for merely 8 days and वो 9 months से ज़्यादा वहाँ पर काट कर आए हैं because of the Boeing Starliner में कुछ इशू हो गया था, इसके कारण जो है वो वापस नहीं आ पा रहे थे. Following Starliner's launch in June 2024, a series of malfunctions left Mr. Williams and Mr. Wilmore on board with ISS before the capsule returned empty to the ground in September. The capsule which took them to the International Space Station, it had faced so many malfunctions that it was not safe for them to come back in that capsule. So they sent back that capsule and they stayed in the International Space Station for 9 months. All right.
यहाँ पर क्या है, अब जो है उनको लेने कौन गया था, एक SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेसशिप जो है उनको वापस लेकर आने के लिए भेजा गया था। विल्मोर्स एंड विलियम्स स्पेंट 286 days that was exceeding this usual 6-month ISS rotation, but ranks only 6th among US records for single mission duration. You see, यहाँ पर जो है 6 महीने में, हर 6 महीने में ISS में जो लोग रहते हैं, ISS मैंने आपको बताया था ना 2011 से कभी भी ये एम्प्टी नहीं रहा है। 2011 से कोई ना कोई वहाँ पे जाके इनहिबिट कर रहा है। 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस से, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर जाके कोई ना कोई रह रहा है फ्रॉम सिंस 2011। तो यहाँ पर क्या नियम है कि हर 6 महीने के बाद लोग जो है, जैसे 6 महीने तक अगर कोई रह रहा है, कोई एस्ट्रोनॉट का पेयर है वो अगर रह रहे, दे विल कम बैक एंड उनके जगह कोई और जो है आएगा और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे, रुकेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, लेकिन ये जो 286 डे का जो लंबा इन्होंने काटा है, दिस इज ओनली द सिक्स्थ अमंग द यूएस रिकॉर्ड फॉर सिंगल मिशन ड्यूरेशन। जैसे कि ये 6 नंबर पे आते हैं। इससे पहले आप देखें, अगर फ्रैंको रूबियो देखें, सबसे ज़्यादा उन्होंने दिन काटा है 371 डेज, जो कि 2023 में उन्होंने फ्रैंक रूबियो ने काटा था। और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो रशियन कॉस्मोनॉट ने बनाया है, वेलेरी पोलियाकोव, who spent 437 consecutive days aboard with the Mir station। तो वो क्या है, हमारे वेलेरी पोलियाकोव जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा दिन जो है स्पेस में काटा है, 437 डेज, ठीक है। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, लेकिन यूएस का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो फ्रैंक रूबियो ने 371 डेज काटा। एंड सुनीता विलियम एंड बच विल्मोर आर they are in the 6th position spending 286 days। तो देख रहे हैं आप कंसेक्यूटिवली लोग, मतलब एक साल, दिस इज 371 इज मोर देन 1 ईयर, और 437 तो आई थिंक इट इज मोर देन 1.5 साल से भी ज़्यादा, ठीक है, 1.5 ईयर्स से भी ज़्यादा जो है इन्होंने काटा है। सो दीज आर दी पीपल जो कि स्पेस पे काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। एंड ये जो है ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, एंड दे हैव कम बैक, दैट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो कि दे हैव कम बैक सेफली, दे हैव splash down safely, ठीक है। Next news for the day is Union Cabinet clears Namrup 4 plant। So you know that in Namrup we have fertilizer unit, we have a fertilizer plant जिसको अब revive करने के लिए इसी साल के यूनियन बजट 2025 में they had announced that they would launch this mission to एक यूरिया प्लांट जो है वो सेटअप करेंगे in the Namrup region। So Namrup region जो है, if you see why we made this Namrup fertilizer, if you may ask, the answer is because all the fertilizers, all right, all the fertilizers come from the western part of the India, ठीक है। they are packed and they are sent from, let's say, Russia से they come to Mumbai port, and then Mumbai से we send it to all the parts of the country। Now what happens is in the northeastern region and in the eastern region also in some areas, वहाँ पर क्या होता है, हमारे जब तक फर्टिलाइजर हमारे तक पहुँचता है बहुत समय बीत जाता है, और साथ ही क्या है, द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर गेट्स इंक्रीज्ड, ठीक है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट रहता है, बहुत सारे कॉस्ट रहते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल to produce more, ठीक है, lot of potential is there in this northeastern region। So what we did is, हमने क्या किया कि हम इसको डिलीवर करने के जगह पर डिलीवर करने की जगह, why don't we make our own fertilizer plant, right? So we are reviving this plant, reviving kind of, say you can say that it is revival only। So we can revive this Namrup plant by उसको एक नया फर्टिलाइजर प्लांट बना के, इट इज नॉट न्यू, ओके, इट इज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। व्हाट इज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट? अब ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट इज कि आपने वहां पर पहले से एग्जिस्टिंग एक प्रोजेक्ट था, यू आर जस्ट रिवाइविंग इट, ऑलराइट। डिफरेंस बिटवीन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इज क्लियर। ग्रीनफील्ड इज वेर यू आर मेकिंग अ न्यू प्लांट आप कहीं पे लगा रहे हैं, दैट इज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, बट दिस इज अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट इज कि एग्जिस्टिंग वहां पर फर्टिलाइजर प्लांट था, वी आर जस्ट रिवाइविंग इट, वी आर जस्ट रिन्यूइंग इट, ठीक है। सो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर्ड दिस नामरूप 4 प्लांट, ठीक है, कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पर बहुत सारा हम फर्टिलाइजर्स को वी कैन प्रोड्यूस दी फर्टिलाइजर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे अप्रूव द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स ऑफ 12.7 lakh metric tons annual capacity of urea production within the existing premises of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Namrup। Very important, ठीक है। So this will be a big urea जो है प्लांट
प्लांट का ये एक बनाया जा रहा है एंड दिस इज अ ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर कितना 12.7 लाख मेट्रिक टन्स का जो है एनुअल कैपेसिटी से दे विल मेक यूरिया, ठीक है। नामरूप का जो है ये जो पूरा प्रेमाइस है इसका नाम क्या है, ये जो कंपनी है कंपनी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BVFCL, इट इज इन नामरूप। और एंड ये 1960s में ही जो इसको बना दिया गया था, ठीक है। इट वाज मेड बिफोर द लिबरलाइजेशन एरा। The plant will be set up with an estimated total projected cost of rupees 10,601 crore with debt equity to ratio 70:30 through a joint venture under new investment policy 2012। तो यहाँ पर क्या है, डेट जो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसमें क्या है कि डेट इक्विटी जो है वो लेंगे। जैसे कि अगर 100 रुपये ले रहे हैं तो उसमें 70 रुपये जो है ये डेट होगा, दैट विल बी रीन इंटरेस्ट इसमें पे करेंगे, और 30% जो है इसका इक्विटी वो डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो इज 30:70। द टेंटेटिव ओवरऑल स्केड्यूल फॉर कमिशनिंग ऑफ नामरूप 4 प्रोजेक्ट इज 48 मंथ्स स्टेट से। तो 48 मंथ्स में जो है इसका काम जो है वो भी करना हम स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। एडिशनली द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड 18% equity participation of the National Fertilizer Limited in relaxation to the limits prescribed by Department of Public Enterprises guidelines and constitution of an interministerial committee to oversee process of setting up Namrup fertilizer plant। तो इसमें क्या है, कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है कि 18% इक्विटी पार्टिसिपेशन कौन करेंगे, ये जो 30% जो हमारा इक्विटी है उसमें 18% जो है ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के पास रहेगा। और यहाँ पर क्या एक इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी भी बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ जो भी यहाँ पर पावर होंगे, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी जो है यहाँ पर जो है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, ताकि यहाँ पर क्या ओवरसी करे प्रोजेक्ट को और फटाफट जो है काम भी होते रहे, इसीलिए ये इसको हम सेटअप करवाएंगे। In the proposed joint venture, the government of Assam will have 40% equity। मतलब उस अगर हम 30% को अगर हम 100% मान ले तो उसमें से 40% जो है ये उनका गवर्नमेंट ऑफ असम का रहेगा, BVFCL का 11% रहेगा, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन का 13% रहेगा, NFL का 18% रहेगा और ऑयल इंडिया लिमिटेड का 18% रहेगा। तो 30% का जो है पूरा इक्विटी का आपको समझ में आ गया होगा। अगर 30% को अगर हम 100% रखें तो सबसे बड़ा शेयर किसका है, सबसे बड़ा शेयर है हमारे गवर्नमेंट ऑफ असम का। फिर BVFCL का 11% है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL का 13% है, दैट इज नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड दैट इज NFL का 18% है एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड का 18% है। तो इस तरीके से इक्विटी इज डिवाइडेड अमंग दी स्टेक होल्डर्स, ठीक है। एंड द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इज ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ असम। गवर्नमेंट ऑफ असम जो है वो इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर रहेगा एंड बाकी जो 70% है दैट विल बी टेकन एज डेट, ठीक है, डेट के रूप में लेंगे ताकि धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है वो चुकाते रहे। दिस इज द कोर एरिया। इसमें क्या है कि इस तरीके से जो है इसको पूरा सेटअप किया गया है एंड दिस विल बी रियली बेनिफिशियल, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है यूरिया, अगर इफ द स्टेट ऑफ असम प्रोड्यूसेस यूरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया विल बी चीपर, सेकेंड ऑफ ऑल वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट यूरिया, थर्ड ऑफ ऑल बिकॉज वी आर सो naturally endowed with these resources, it will be really beneficial in the longer term, it will reduce our import burden, ठीक है, it will reduce our import burden, it will generate employment, ठीक है, it will generate employment and it will ऑब्वियसली रिवाइव द एरिया। जो हमारा नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट है उसको बिल्कुल बहुत तगड़े तरीके से इसको रिवाइवल मिलेगा एंड इट विल बी रियली बेनिफिशियल इन द लॉन्गर टर्म। इन द लॉन्गर टर्म वी विल बी एबल टू export urea to these regions of the Southeast Asian regions. For example, we can go to Thailand, we can deliver our urea from northeastern region to let's say Philippines, Vietnam, all these agrarian countries, ठीक है। हमारी तरह जो sustainable जो हमारी तरह agrarian societies है, we can deliver our urea from Assam, so it will be really beneficial, really important। and आप समझिए कितना सारा हम कुछ कर सकते हैं। for example, we can deliver urea to Bangladesh via the Brahmaputra route, the waterway route. We can give urea to Bangladesh, we can give urea to Myanmar, we can give urea to Bhutan, we can give urea to let's say China, we can export our urea also. So a plethora of opportunities comes with this urea power plant, ठीक है। So
this is very very important. You have to understand the importance of making one urea plant and ताकि एक balanced development हो, किसका एक balanced development हो. You will see very much inequality, एक inequality जो है आपको देखने को मिलेगा in the north eastern region and the rest of the country, right? Especially the eastern part and the western part. Western part is developed to a certain extent, very much developed, and the eastern region is, you know, it's still developing. So इसके लिए बहुत important रहता है कि हमारा जो participation है वो increase हो, and definitely ये बहुत एक important major role play करेगा. ठीक है, we can move to the last news. The last news is Philippines keen on joining Squad, says General Romeo S. Bronner. ठीक है, he is the general of chief of staff of Philippines Armed Forces. Mr. Bronner is the general of chief, let's say we can say the armed forces के, he is the general. He is very keen in joining the squad. तो फिलीपीन जो है बहुत ज़्यादा कीन है इन ज्वाइनिंग द स्क्वाड. इट इज़ अ मिनीलैटरल, ठीक है, इट इज़ अ मिनीलैटरल एंड इसमें क्वाड की जितनी कंट्रीज़ है और साथ ही साउथ कोरिया और फिलीपींस जो है ये जो है ज्वाइन होना चाहते हैं. साउथ कोरिया ज्वाइन भी कर चुके हैं और फिलीपींस इज ऑल्सो कीन इन ज्वाइनिंग द स्क्वाड. तो व्हाट डज फिलीपींस इज, द फिलीपीन इज कीन ऑन इंडिया एंड साउथ कोरिया ज्वाइनिंग द स्क्वाड, द मैरीटाइम ग्रुपिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस एंड द यूएस इन द साउथ चाइना सी. जनरल रोमियो एस ब्रॉनर, द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ मिलिट्री फिलीपींस आर्म फोर्सेस, सेड इन द रेजिना डायलॉग इन वेंसडे. तो यहाँ पर जो है हमारे जो फिलीपींस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन ज्वाइनिंग दी स्क्वाड. स्क्वाड जो है इसमें क्या है, दे आर वेरी मच आइंग टू ज्वाइन दी स्क्वाड. और स्क्वाड क्या है, ये जो साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इट इज़ अ ग्रुपिंग. ठीक है, टर्मिंग चाइना द कॉमन एनिमी ऑफ बोथ इंडिया एंड फिलीपींस, ही कॉल्ड फॉर ग्रेटर कॉपरेशन बिटवीन दी टू कंट्रीज. जो रेजिना डायलॉग में उन्होंने कहा है कि इंडिया चाइना इज अ कॉमन एनिमी फॉर इंडिया ऑल्सो, फॉर फिलीपींस ऑल्सो. तो वहाँ पर साउथ चाइना सी में ताकि एक शांति जो है वो बनी रहे और एक लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है, रूल्स एंड ऑर्डर्स जो है उनका सिचुएशन बना रहे, इसीलिए यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर एक जो वो स्क्वाड का ग्रुपिंग है, स्क्वाड की ग्रुपिंग में फिलीपींस भी एंटर करना चाहते हैं. ठीक है, व्हाट इज अ स्क्वाड? स्क्वाड इज अ क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग कंप्राइजिंग ऑफ 4 इंडो पैसिफिक नेशंस. कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, फिलीपींस एंड जापान है. इसमें इंडिया नहीं है. ठीक है, इट इज अ मिनीलेटरल सिक्योरिटी मिनीलेटरल ग्रुपिंग है इंडो पैसिफिक रीजन में. इंडो पैसिफिक है मतलब यहाँ पे इंडियन ओशन के लोग कंट्रीज भी है और पैसिफिक ओशन की भी कंट्रीज है. कौन कौन है? यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है एंड जापान है. द स्क्वाड हैज बिकम अ रिसेंट एडिशन टू द सीरीज ऑफ सच मिनीलेटरल सिक्योरिटी ग्रुपिंग्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन. फॉर एग्जाम्पल क्वाड है, ऑकस है, यूएस फिलीपीन जापान ट्राइलैटरल है, यूएस जापान साउथ कोरिया ट्राइलैटरल है. इस टाइप के जो मिलिट्री ग्रुपिंग्स है उसमें से ये भी एक है, स्क्वाड भी एक है. इसमें कौन कौन है? यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है और जापान है. ठीक है, इट इज़ अ मिनीलेटरल ग्रुपिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि चाइना का यहाँ पे बहुत एग्रेसिव पॉलिसी है इन द साउथ चाइना रीजन. 9 डैश लाइन है यहाँ पर, उन्होंने 9 डैश लाइन क्या पूरा क्लेम किया है साउथ चाइना सी को. तो इसीलिए ये इस टाइप के जो मिनी ग्रुपिंग्स है ये बनते हैं ताकि यहाँ पर एक रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ख़राब ना हो एंड यहाँ पर रूल्स बेस्ड जो भी नियम और कानून जो है उसके तहत जो है यहाँ पर कुछ भी अगर हो रहा है तो इट शुड बी रूल बेस्ड. ऑलराइट, तो ये सिक्योरिटी मिनीलेटरल ग्रुपिंग है. ये आपको समझना होगा कि ये सिक्योरिटी का जो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन करना है. द ऑब्जेक्टिव इज टू डीपन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन अमंग देमसेल्फ एंड काउंटर द हेजेमोनिक टेंडेंसीज ऑफ चाइना इन मिलिटराइजिंग द साउथ चाइना सी, थ्रेटनिंग द रूल बेस्ड ऑर्डर ऑफ द इंडो पैसिफिक. यहाँ पर ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या है, हेजेमोनिक एक डोमिनेंस है चाइना का इन दिस रीजन. ठीक है, बीट विथ ताइवान या फिर यहाँ बहुत सारे जो छोटे बड़े आइलैंड्स है, स्कारबोरो शोल, पैरासेल आइलैंड, बहुत टाइप के आइलैंड्स है, वहाँ पर डायरेक्ट डोमिनेंस है चाइना का. तो जो हेजेमोनिक टेंडेंसीज उसको ब्रेक करने के लिए ये स्क्वाड जैसे ग्रुपिंग या फिर कोई भी मिनीलेटरल ग्रुपिंग है इसका फॉर्मेशन किया जाता है. आइडिया क्या है इनफॉर्मल ग्रुपिंग का जो 4 नेशन का था, तो enhanced strategic collaboration in the South China Sea has been in table since 2023 कि ऐसा एक कोई मिनी ग्रुपिंग बने जो कि चाइना के डोमिनेंस को रोके. एंड चाइना का बिल्कुल बहुत वायलेंटली जो है रिप्लाई करता है वो एक देश है, वो है फिलीपींस. ठीक है, फिलीपींस काफ़ी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस्ड
इफ यू सी इन द साउथ चाइना रीजन, फिलीपीन इज द वन कंट्री दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्स्ट, एंड उन्होंने डायरेक्टली काउंटर किया है चाइना को भी बहुत बार, ठीक है। उनके चाहे कोस्ट गार्ड के जो शिप्स है उसको स्टॉप करवाना हो या फिर इस टाइप के स्टेप्स जो है वो लेते रहता है फिलीपींस। सो फिलीपींस वांट्स कि साउथ चाइना सी में जो है एक शांति जो है वो बने रहे और चाइना का जो डोमिनेंस है वो कम हो, इसीलिए फिलीपींस इज कीन विथ एंगेजिंग विथ इंडिया, ठीक है। तभी उन्होंने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदे। फिलीपींस इज कीन इन जॉइनिंग दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग्स बिकॉज दे वांट कि साउथ चाइना सी जो है ये एक शांति यहाँ पर बनी रहे। 2023 में अगर आप देखें, डिफेंस चीफ ऑफ ऑल 4 कंट्रीज, कौन कौन के 4 कंट्रीज है याद करिए, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस, ये चारों जो स्क्वाड के मेंबर्स है वो मिले हैं शांग्रीला जो सिक्योरिटी डायलॉग होता है ना सिंगापुर में जो शांग्रीला सिक्योरिटी डायलॉग होता है वहां पर मिले थे और चाइना ने ये जो ग्रुपिंग है इनफॉर्मल ग्रुपिंग को फॉर्म किया है। अब शांग्रीला आप सोच रहे होंगे कि क्या है, शांग्रीला इज अ सिक्योरिटी डायलॉग जो कि सिंगापुर करवाता है हर साल, जस्ट लाइक राइजीनिया डायलॉग, जैसे हम हर साल रेजिनिया करवाते हैं वैसे ही शांग्रीला जो डायलॉग है ये हर साल होता है। वहां पर ये चारों कंट्रीज मिले थे एंड दे मेड दिस इनफॉर्मल ग्रुपिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट स्क्वाड। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑलराइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.